जय सद्गुरुदेव, जय पच्चरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म का गीता सुधा भाष्य अध्याय 6 श्लोक 30। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्म रूप मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव परमेश्वर के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है, क्योंकि वह मेरे में एक ही भाव से स्थित है। समदृष्टि प्राप्त हुए बिना चित्त एकाग्र नहीं हो सकता। बिना चित्त की एकाग्रता के योग असंभव है। समदृष्टि का अर्थ है शुभ दृष्टि। साम्य दृष्टि आनी चाहिए। यह सारी सृष्टि मंगलमय मालूम होनी चाहिए। जैसे मुझे स्वयं अपने पर विश्वास है, वैसा ही सारी सृष्टि पर मेरा विश्वास होना चाहिए। यदि हमारे मन को इस बात का निश्चय न हो कि यह सृष्टि शुभ है, तो चित्त की एकाग्रता नहीं हो सकती। जब तक मैं समझता रहूंगा कि सृष्टि बिगड़ी हुई है, तब तक संशयपूर्ण दृष्टि से मैं चारों ओर देखता रहूंगा। जब तक यह ख्याल दिमाग से न निकलेगा कि अपना रक्षक मैं अकेला ही हूं, बाकी सब भक्षक हैं, तब तक एकाग्रता नहीं सध सकती। समदृष्टि की भावना करना यही एकाग्रता एवं योग साधन का उत्तम मार्ग है। आप सर्वत्र मंगलमय देखने लग जाइए, चित्त अपने आप शांत हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, इस तत्व के विषय में कुछ भी शक या भ्रांति नहीं है कि मैं ब्रह्मलीन आत्मा ही समस्त शरीरों में निवास करता हूँ, और इसी प्रकार यह बात भी निर्विवाद रूप से सिद्ध है कि यह सारा विश्व मुझ में ही निवास करता है। इस मनुष्य को ऐसी तैयारी करनी चाहिए कि उसकी समझ में यह बात अच्छी तरह आ जावे कि विश्व और हम बिल्कुल एक हैं और एक दूसरे में मिले हुए हैं। हे अर्जुन, सच तो यह है कि जो मनुष्य इस प्रकार ऐक्य की भावना रखता हुआ मुझ परमेश्वर को ही समस्त प्राणियों में समान रूप से मिला हुआ समझकर भजता है, भूत मात्र में केवल ऊपर से दिखाई पड़ने वाले भेद के कारण, जिसके अंतःकरण में किसी प्रकार का भेदभाव हो ही नहीं सकता, और सब जगह मुझ एकमात्र परमेश्वर अपने इष्ट ही के एक स्वरूप को देखता है, ऐसा पुरुष परमेश्वर में ही वास करता है और परमेश्वर भी ऐसे ही पुरुष में रहता है। The yogin beholds through Divya Drishti, the eye of intuition, oneness or unity of the self everywhere. This is a sublime and magnanimous vision indeed. He beholds that all beings are one with Brahman and that self and Brahman are identical. The self realized man sees his self, Atman, everywhere. He who sees me, the self of all, in all beings, from Brahman, the creator, down to the blade of grass, in me, I am not lost to him, nor is he lost to me. At this stage, Lord never disappears from the sight of the devotee, nor does the devotee ever lose sight of the Lord. Lord is seen ever seated within the heart of the devotee. Such a devotee cannot bear to live for a moment without seeing the Lord within himself. Indeed, I dwell in him and he dwells in me. Om. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആത്മാവായി എല്ലാ ജീവികളിലും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന എന്നെ
പരമേശ്വരൻ്റെ ഭാഗമായി കാണുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഞാൻ അദൃശ്യനല്ല. അവൻ എന്നിൽ ഏകത്വത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനാൽ എനിക്ക് അദൃശ്യനുമല്ല. തുല്യദർശനം നേടാതെ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കാൻ കഴിയില്ല. മനസ്സിൻ്റെ ഏകാഗ്രതയില്ലാതെ യോഗ അസാധ്യമാണ്. തുല്യദർശനം എന്നാൽ ശുഭദർശനം എന്നർത്ഥം. തുല്യദർശനം ഉണ്ടായിരിക്കുകയും മുഴുവൻ സൃഷ്ടികളും ശുഭകരമായി തോന്നുകയും വേണം. ഒരാൾക്ക് സ്വയം തന്നിൽ വിശ്വാസമുള്ളതുപോലെ മുഴുവൻ സൃഷ്ടികളിലും അതേ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഈ സൃഷ്ടി ശുഭകരമാണെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിന് ഉറപ്പില്ലെങ്കിൽ മനസ്സിൻ്റെ ഏകാഗ്രത സംഭവിക്കില്ല. സൃഷ്ടി നശിച്ചുവെന്ന് ഒരാൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുവരെ സംശയാസ്പദമായ ഒരു ദർശനത്തോടെ ചുറ്റും നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഞാൻ മാത്രമാണ് എൻ്റെ സംരക്ഷകനെന്നും മറ്റുള്ളവരെല്ലാം വേട്ടക്കാരാണെന്നുമുള്ള ചിന്ത മനസ്സിൽ നിന്ന് പോകുന്നതുവരെ മനസ്സിന് ഏകാഗ്രത കൈവരിക്കാൻ കഴിയില്ല. തുല്യദർശനബോധം അഥവാ ശുഭദർശനബോധം ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നതാണ് ഏകാഗ്രതയ്ക്കും യോഗ പരിശീലിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം. എല്ലായിടത്തും ശുഭം കാണാൻ തുടങ്ങിയാൽ മനസ്സ് സ്വയമേവ ശാന്തമാകും. പരമാത്മാവിൽ ലയിച്ചിരിക്കുന്ന ആത്മാവ് എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും വസിക്കുന്നു എന്ന വസ്തുതയിൽ യാതൊരു സംശയമോ ആശയക്കുഴപ്പമോ ഇല്ലെന്ന് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അർജുനന് വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തു. അതുപോലെ ഈ ലോകം മുഴുവൻ എന്നിൽ വസിക്കുന്നു എന്നതും സംശയാതീതമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ലോകവും നമ്മളും പൂർണ്ണമായും ഒന്നാണെന്നും പരസ്പരം ലയിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും ഈ കാര്യം നന്നായി മനസ്സിലാക്കുന്ന വിധത്തിൽ മനുഷ്യൻ സ്വയം തയ്യാറാകണം. ഹേ അർജുന, സത്യം എന്തെന്നാൽ പരമാത്മാവായ എന്നെ ഈ വിധത്തിൽ ഐക്യത്തിൻ്റെ വികാരം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് എല്ലാ സൃഷ്ടികളിലും തുല്യമായി ലയിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതായി കണക്കാക്കുന്നു. പുറമേ നിന്ന് മാത്രം കാണുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ കാരണം ഒരു തരത്തിലുമുള്ള വിവേചനവുമില്ലാതെ എൻ്റെ ഒരേ ഒരു രൂപം മാത്രം കാണുന്ന അഥവാ പരമാത്മാവിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടദേവനെ എല്ലായിടത്തും കാണുന്ന മനുഷ്യൻ പരമാത്മാവിൽ വസിക്കുന്നു. അത്തരമൊരു മനുഷ്യനിൽ പരമേശ്വരനും വസിക്കുന്നു. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ. നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്. जय पदशरणम. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. जो व्यक्ती मला, वासुदेवाला, ईश्वराला सर्व प्राण्यांचा आत्मा म्हणून पाहतो, सर्व प्राण्यांमध्ये व्यापून राहतो आणि सर्व प्राण्यांना माझ्या वासुदेवाला, ईश्वराला एकात्मतेत स्थित असल्याने पाहतो, त्याला मी अदृश्य नाही आणि तो मला अदृश्य नाही, कारण तो माझ्यामध्ये एकात्मतेत स्थित आहे. समान दृष्टी प्राप्त केल्याशिवाय मन एकाग्र होऊ शकत नाही. मनाच्या एकाग्रतेशिवाय योग अशक्य आहे. समान दृष्टी म्हणजे शुभदृष्टी. समान दृष्टी असावी ही संपूर्ण सृष्टी शुभ वाटली पाहिजे. जशी मला स्वतःवर श्रद्धा आहे तशीच माझी संपूर्ण सृष्टीवरही श्रद्धा असली पाहिजे. जर आपल्या मनाला खात्री नसेल की ही सृष्टी शुभ आहे तर मनाची एकाग्रता होऊ शकत नाही. जोपर्यंत मी असा विचार करत राहतो की सृष्टी बिघडलेली आहे तोपर्यंत मी संशयास्पद दृष्टीने आजूबाजूला पाहत राहीन. जोपर्यंत हा विचार मनातून जात नाही की मी एकटाच माझा रक्षक आहे, बाकी सर्व भक्षक आहेत, तोपर्यंत एकाग्रता प्राप्त होऊ शकत नाही. समान दृष्टीची भावना असणे हा एकाग्र होण्याचा आणि योगाभ्यास करण्याचा सर्वोत्तम मार्ग आहे. तुम्हाला सर्वत्र शुभ दिसू लागेल, मन आपोआप शांत होईल. भगवान श्रीकृष्णाने अर्जुनाला समजावून सांगितले की मी परमात्म्यात लीन झालेला आत्मा सर्व शरीरात राहतो या वस्तुस्थितीबद्दल कोणताही संशय किंवा गोंधळ नाही आणि त्याचप्रमाणे हे संपूर्ण जग माझ्यामध्ये राहते हे देखील निसंशयपणे सिद्ध झाले आहे. या माणसाने स्वतःला अशा प्रकारे तयार करावे की त्याला हे चांगले समजेल की हे जग आणि आपण पूर्णपणे एकच आहोत आणि एकमेकांमध्ये विलीन आहोत. हे अर्जुना, सत्य हे आहे की जो व्यक्ती माझी
परमात्म्याची पूजा करतो, अशा प्रकारे एकत्वत्वनेची भावना ठेवून मला सर्व प्राण्यांमध्ये समान रीतीने विलीन मानतो. ज्याच्या हृदयात केवळ बाहेरून दिसणाऱ्या फरकामुळे कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव असू शकत नाही आणि तो माझे एकच रूप, एकमेव परमात्मा, त्याचा इष्ट सर्वत्र पाहतो. असा व्यक्ती परमात्म्यात राहतो आणि परमात्मा देखील अशा व्यक्तीमध्येच राहतो. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. నా సద్గురు సందేశం గీతాసుధ పరమహంస మహాత్మా శ్రీ యశ్బాజీ మహారాజు వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతాభ్యాసం అధ్యాయం 6 శ్లోకం 30. ఏ పురుషుడు సమస్త ప్రాణుల యందు అన్నిటి ఆత్మస్వరూపుడైన నా వాసుదేవ పరమేశ్వర స్వరూపము చూస్తాడో మరియు సమస్త ప్రాణులను నా వాసుదేవ స్వరూపంలో అంటే పరమేశ్వర స్వరూపంలో చూస్తాడో మరియు అటువంటి వానికి నేను అగోచరుడను కాను, అతడు నాకు కూడా అగోచరుడు కాడు, ఎందుకంటే అతడు నాలో ఐక్యభావంతో నిలిచి ఉన్నాడు. సమదృష్టి ప్రాప్తించకుండా చిత్తాగ్రత లభించదు. చిత్తాగ్రత లేకుండా యోగం అసంభవము. సమదృష్టి అంటే అర్థము శుభకరమైన దృష్టి అని. అందువల్ల సామ్య దృష్టి ఉండవలసినది. ఈ సమస్త సృష్టి శుభమయం కావాలి. తనకు తనపై ఎటువంటి విశ్వాసం ఉంటుందో అదేవిధంగా సమస్త సృష్టిపైన అటువంటి విశ్వాసమే ఉండాలి. ఒకవేళ మన మనసుకు ఈ సృష్టి శుభప్రదమైనది అనే మాటపై గట్టి నమ్మకం లేనట్టయితే చిత్త ఏకాగ్రత కలగదు. ఈ సృష్టి పాడైపోయింది అని నేను ఎప్పటి వరకు భావిస్తూ ఉంటానో అప్పటి వరకు సంశయపూర్వక దృష్టితో నేను నలువైపులా చూస్తూ ఉంటాను. నా రక్షకుడు నేనే, మిగిలిన వారంతా భక్షకులే అనే భావన మనసులోంచి ఎప్పటి వరకు తొలగిపోదో అంతవరకు ఏకాగ్రత సాధించబడదు. సమస్త దృష్టి భావన కలగాలి. అదే ఏకాగ్రత మరియు యోగ సాధనకు ఉత్తమమైన మార్గము. మీరు అంతా శుభాన్ని చూడడం ప్రారంభించినప్పుడు చిత్తం తనంతట తాను శాంతిస్తుంది. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునునికి ఈ విధంగా వివరించాడు. నేను అనగా బ్రహ్మలేని ఆత్మను సమస్త శరీరంలోనూ నివసించుచున్నాను అనే ఈ తత్వ విషయంలో అనుమానం కానీ భ్రాంతి కానీ ఏమాత్రం వద్దు. అలాగే ఈ సమస్త విశ్వము నాలోనే నివసించుచున్నది అనే మాట కూడా నిర్వివాదముగా నిరూపించబడింది. మానవుడు ఏ విధంగా తయారు కావాలంటే నేను, ఈ ప్రపంచము ఈ రెండు పూర్తిగా ఒక్కటే అనియు ఒకరితో ఒకరం కలిసి ఉన్నాం అనే విషయం అతని బాగా అర్థం కావాలి. ఓ అర్జున, నిజం ఏమిటంటే ఏ మానవుడు పరమేశ్వరుడినైనా నేనే సమస్త ప్రాణుల యందు సమాన రూపంలో ఉన్నాను అనే ఐక్యభావం కలిగి నన్నే పూజిస్తూ ఉంటాడో, అలాగే ప్రాణుల యందు పై కనిపించే భేదముచే ఎవరి అంతఃకరణలో భేదభావం కలగదో మరియు సమస్త జగత్తునందు పరమేశ్వరుడినైన నా యొక్క అంటే తన ఇష్టం యొక్క ఒకే ఒక స్వరూపం చూస్తాడో అటువంటి పురుషుడు పరమేశ్వరుని ఎందే వసిస్తూ ఉంటాడు. అలాగే పరమేశ్వరుడు కూడా అటువంటి పురుషుని ఎందే ఉంటాడు. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై బసరణం. जे मनुष्य संपूर्ण सृष्टि के संरचना में मात्र हमर स्वरूप के देखैत अछि आ जे समस्त संसार के हमरे स्वरूप में विद्यमान देखैत अछि, ओकरा लेल हम कखनहु अदृश्य नहीं होइत छी आ ओ हमरा लेल कखनहु अदृश्य नहीं होइत अछि, कारण जे ओ हमरे में एकी भाव से स्थित अछि। समदृष्टि प्राप्ति के बिना चित्त एकाग्र नहीं भऽ सकैत अछि आ बिना चित्त के एकाग्रता के योग असंभव अछि। समदृष्टि के अर्थ भेल शुभ दृष्टि। समस्त संसार लेल समान दृष्टि राखब योग लेल अनिवार्य अछि। ई समस्त सृष्टि के मंगलमय बूझब आवश्यक अछि। जहिना योगी के स्वयं पर विश्वास थिक, उएह विश्वास ओकरा समस्त सृष्टि पर राखबाक चाही। यदि मौन में ई निश्चय नहीं भेल जे ई सृष्टि शुभ अछि तऽ चित्त स्थिर नहीं भऽ सकैत अछि। जँ हम एहि भ्रम में रहब जे सृष्टि विकृत अछि तऽ हम संशय के दृष्टि सँ चारू दिस देखैत रहब। जखन धरि ई अहंकार मौन सँ नहीं हटत जे हम स्वयं रक्षक छी आ आन सब भक्षक, तखन धरि चित्तक एकाग्रता असंभव रहत। समदृष्टिक भावना यह अछि चित्त स्थिर करबाक आ योग साधनाक सर्वोत्तम उपाय। जखन हम सर्वत्र शुभ देखऽ लागब, चित्त स्वयं शांत भऽ जायत। श्री कृष्ण अर्जुन सँ कहैत छथि, हे अर्जुन,
एहि विषय तत्व में कोनो भ्रम वा संदेह नहीं थिक जे हम ब्रह्मलीन आत्मा सब देह में वास करैत छी। ओहि तरहें ई बात सेहो अटल अछि जे ई संपूर्ण विश्व हमरा में वास करैत अछि। मनुष्य के ई तैयारी करबाक चाही जे ओ स्पष्ट देख सकै हम आ ई विश्व फराक नहीं छी, हम एक दोसर में समाहित छी। हे अर्जुन, सत बात ई थिक जे मनुष्य एहि ऐक्य भाव सँ परमेश्वर के सब प्राणी में समान देखैत अछि, जे ई बुझैत अछि जे खाली देह के अंतर अछि, मुदा अंतःकरण में कोनो प्रकारक भेदभाव नहीं रहैत अछि। ओ सब ठाम हमरे एक रूप परमेश्वर के देखैत अछि। एहन पुरुष वास्तव में परमेश्वर में वास करैत अछि आ परमेश्वर सेहो ओहि पुरुष में निवास करैत छथि। अखिल भारतीय संत मत सत्संग, पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।